तो आपको बता दें कि हमारा सहयोगी चैनल CNN IBN इस वक्त आपको ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। CNN IBN की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हमारी रिपोर्टर अनुभव भोसले ने केदारनाथ पहुंचकर वहां पर मौके का जायजा लिया। वहां किस तरीके के हालात हैं, कैसे लोग फंसे हुए हैं, पिछले 6 दिनों से वो वहां पर कैसे रह रहे थे, और जब ये बादल फटा था तो लोगों को शरण लेने के लिए कहां कहां जाना पड़ा था। कुछ लोगों ने बताया कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे, कुछ ने बताया कि वो किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ नहीं बचा है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। बिल्डिंग्स जो वहां पर मौजूद थी, जो धर्मशालाएं थी, जो होटल्स थे, वो तहस नहस हो चुके हैं। आपको नजर आ रहा है इन तस्वीरों में सिर्फ केदारनाथ का मंदिर, उसका गुंबद और साथ में जो उसकी बाउंड्री वॉल थी, जो रेलिंग थी, वो भी इस बाढ़ में बह चुकी है। Above the temple town of Kedarnath, and the pictures really speak for themselves. The devastation is really huge. You can see the entire mountain range in a sense being cut across. A closer look, and yes, the sorties have been able to fly relatively low for us to be able to get a sense of what the situation is on the ground. As we've been reporting, the temple structure, yes, stands tall, but all across it all around it, I beg your pardon, is a picture of complete devastation. I think the only point that is now visible from this height really are rooftops. It's just the rooftops of any infrastructure, hotels, houses, etc. that perhaps are visible. All around it, the river seems to have cut its way through. There is debris all around. The mountain range has cut its way through, and boulders, stones, etc. have already piled all around the temple complex. The Indian Air Force sortie is now carrying further security personnel, NDRF personnel, really down to Uttarkashi, whereas we've been stressing relief has been most needed. The sense on the ground that I'm getting after speaking to people who have done a whole lot of sorties here, that evacuation really at this stage seems more or less complete as far as Kedarnath is concerned. The temple town is concerned, the evacuation seems more or less complete. But from past experiences of the last 3 to 4 days, the sense they are getting is that very, very often people do come down from still upper reaches to Kedarnath. I think the pictures there, a closer look really, the aerial survey, an aerial look coming down on Kedarnath, and immense damage, immense infrastructure damage. But I think the rush of the water is far, far less. The water levels have receded far, far less. We were told they were several feet high, almost touching onto those boulders that you can see. So they are far, far high. This helipad really has been a makeshift helipad, and many of the people have been waiting here. You can see they've been gathered here for the last so many days, waiting for this particular chopper. We are going to wait till land loud and perhaps get you more voices. तो अनुभा ने आपको दिखाया कि कैसे इंडियन एयरफोर्स के ये हेलीकॉप्टर्स अब मौके पर पहुंच चुके हैं। लोग इन हेलीकॉप्टर्स का ही इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें सिर्फ आसमान की ओर घूरकर ये देख रही थी कि अगला हेलीकॉप्टर अब कब आएगा, और इन हेलीकॉप्टर्स के सहारे ही अब इन लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। क्योंकि आपको एक बार फिर से बता दें कि केदारनाथ का संपर्क सड़क के रास्ते अब पूरी तरीके से टूट चुका है। सड़क के रास्ते अब केदारनाथ नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता है, जब तक जो पुल टूटे हैं वो नहीं बन जाते हैं, सड़कें पूरी तरीके से नहीं बन जाती हैं। तो हमने आपको इस एरियल सर्वे के जरिए दिखाने की कोशिश की कि क्या हालात हैं इस वक्त केदारनाथ के, किस तरीके से सब कुछ जो बिल्डिंग्स वहां पर मौजूद थी अब वो तहस नहस हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि केदारनाथ से जो इवैक्यूएशन का काम था, जो लोगों को रेस्क्यू कर देहरादून लाने का काम था, वो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन अनुभा भी अपनी इस रिपोर्ट में बता रही थी कि कुछ और ऊंचे इलाकों से लोग हो सकता है कि पैदल चलकर वो केदारनाथ तक पहुंचे। इसीलिए ये सॉर्टीज अभी भी इंडियन एयरफोर्स की जारी रहेंगी, ताकि उन लोगों को, स्थानीय लोगों को जो दूर दराज के इलाके से यहां पर पहुंचेंगे, जिनके गांव ऐसे इलाकों में हैं, उनको लाया जाएगा। जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उनको वापस लाया जा चुका है। प्राथमिकता वही थी कि बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पहले देहरादून बेस कैंप तक पहुंचाया जाए। ये अब अलग अलग ग्रुप्स इंतजार कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स का। उम्मीद की जा रही है कि आज
शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी के भी जवान मौके पर मौजूद हैं, तैनात हैं, जो लोगों को एक एक कर इन हेलीकॉप्टर्स में भेज रहे हैं, क्योंकि आपको याद दिला दें कि एक संख्या होती है उस संख्या से ऊपर लोग नहीं जा सकते हैं। तो आईटीबीपी के जवान हैं, इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं, जिनकी मदद से लोगों को मौके से रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी चैनल CNN IBN की टीम सबसे पहले केदारनाथ पहुंच गई है। हमारी संवाददाता अनुभा भोसले ने केदारनाथ पहुंचकर वहां फंसे लोगों से खास बातचीत की। देखते हैं अनुभा की एक खास रिपोर्ट। आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं? कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं? छोटा छोटा बोलेगा, मेरे पास 5 मिनट है, मैं सबकी फोटोग्राफ आपके घरों में दिखाना चाहती हूँ। आप कौन है? अच्छा, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। Okay, we've landed here in Gupkashi, where furthermore security personnel are going to be taken to the upper reaches in Kedarnath. But that means many of these people who've been stranded really for days have a long way ahead. I'm going to try and speak to some of them, and perhaps also I think we should play out the visuals, because many anxious families back at home really are waiting for some news of any one of them. कब से इंतजार कर रही हैं आप? 5 दिन से। 5 दिन से। कहाँ से आई हैं? हम बेंगलुरु से आए हैं। अच्छा, और कहाँ फंस गए थे आप? केदारनाथ में। केदारनाथ में बहुत तकलीफ हो गई हमारा, खाना पीना कोई नहीं, बस में घूम रहे। आप कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से आया। अच्छा, कहाँ फंस गई थी? केदारनाथ में। तो पिछले 5 दिनों में क्या खाने को नहीं मिला है? खाने पीने के नहीं। संपर्क हो पाया है घर से? हाँ, घर से संपर्क हो पाया है। आप में से किसका यहाँ पे घर से संपर्क नहीं हो पाया है? कौन अपने घर से संपर्क नहीं कर पाया है? Well, so the good news is that most of these people who've been stranded have had some access to some kind of communication and have been able to speak to their families in that sense. Sir, where were you stranded? I went to the Kedarnath. The flood and all, everything we have seen with our naked eyes. It's a very horrible situation. What did you see? So all the dead bodies are floating and all the buildings were collapsed. We can't say that. I cannot express how much damage it was. So many people were killed, died. How did you manage to escape? That's what we stand in the terrace of one building. Okay. So since last 2 days we were there. So in the bottom, the water is flowing like anything, like a river or a sea, I think. But in that all, where also I lost my hope to survive. So luckily God only saved us. So we don't have any food, we don't have any water, we don't have any current. Nothing was there since last 5 days. We didn't brush our mouth also. So what are you waiting for? You're waiting for an hour. Now I want to go somewhere else from here, either to Dehradun or other from there to Delhi, from there to Chennai, something like that. But the good news is that probably everyone in your group. Yeah, in our group now everyone is there. That is only happy. We are very much happy. Government also is providing, the rescue team also is doing well. Okay. But still it is not sufficient what I feel. Because so many people still there since last 1 week. I'll try and get in more voices, sir, because so many people are anxious to talk. Is there anyone who's lost some family member? सर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ फंस गए थे? वो नाम क्या है, हैदराबाद से आए थे हम लोग। फंस कहाँ गए? फर्स्ट वो बीच में लटक गए थे, उधर से वो पूरा गांव पूरे चले गए, कोई देखने एक भी नहीं बचा, पूरा गांव। आपके ग्रुप में कितने लोग थे? हमारा 19 आए, उसमें से 3 बच्चे पहाड़ में फंस गया। वो पहाड़ों में ऐसा चले गए थे। 3 दिन ऐसा चला, ऐसा चल के पूरा बैक पे पूरा, मगर आदमी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद देयर ट्रीटमेंट। We are struggling, and lot of dead bodies are there. Lot of dead bodies are there. Is everyone in your group safe? Sir? Is everyone in your group safe? In our team, everybody is safe. 16 people are in the temple side, and they also very small बच गए थे। Thank you, sir. Some positivity coming in.
have to wrap it up here from Guptkashi. We'll be getting you many more reports. हमारे सहयोगी चैनल CNN IBN की रिपोर्टर, उनकी टीम अनुभा भोसले मौके पर पहुंची, गुप्तकाशी का दौरा किया, गुप्तकाशी में मौजूद लोगों से बातचीत की। वहां पे टेम्पररी हेलीपैड्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा सकता है। पिछले 2 दिनों में इस बात की काफी दिक्कत थी क्योंकि मौसम थोड़ा खराब था और ये हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ पा रहे थे, लेकिन आज मौसम साफ है। ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स लोगों को इन दूर दराज इलाकों से लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं इसी बात का कि कब अगला हेलीकॉप्टर आएगा और कब वो वापस देहरादून पहुंच पाएंगे। प्राथमिकता पहले बुजुर्ग लोगों को दी जा रही है, महिलाओं को जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून लाया जा रहा है और उसके बाद जो बाकी के तीर्थ यात्री हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उन्हें देहरादून लाने की कोशिश की जा रही है। आपको नजर आ रहे होंगे ITBP और भारतीय सेना के ये जवान जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आज इंडियन एयरफोर्स ने चीता हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ अपने पैराट्रूपर्स को भी एयर ड्रॉप किया है जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो अनुभा की कुछ और रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक ब्रेक के लिए।